کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان اتنا اندھا کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ خود اللہ کے گھر سے جنگ کا اعلان کر دے؟ ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، ہزاروں سپاہی، 9 ہاتھی، اسلحے کا انبار۔ وہ جب چلتا تھا تو زمین کانپتی تھی، وہ جب بولتا تھا تو دربار میں سانس لینا بھی بند ہو جاتا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھا اور سوچا، میں اجے ہوں، میں اجے ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی تباہی کا پہلا قدم تھا۔ اس نے کہا، میں کعبہ کو زمین کے ساتھ برابر کر دوں گا۔ فوج نکلی، ہاتھی آگے بڑھے، زمین کانپی، لوگ ڈرے، مگر آسمان پر کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اور جب صبح ہوئی، دنیا کی سب سے طاقتور فوج چبائے ہوئے بھوسے کی طرح زمین پر بکھری پڑی تھی۔ یہ کہانی ہے اصحاب فیل کی۔ یہ کہانی ہے اس بادشاہ کی جس نے اللہ سے ٹکر لی اور مٹ گیا۔ یہ کہانی ہے اس واقعے کی جس پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، سورہ فیل۔ تو دوستو بیٹھ جائیے، آج کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، آپ کا ایمان ہل جائے گا مگر مضبوط ہو کر۔ بسم اللہ پس منظر۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس واقعے کی بات کریں گے جو اسلام سے پہلے کا ہے، مگر جسے اللہ نے خود قرآن میں یاد فرمایا، جسے نبی کریم کے صحابہ جانتے تھے، جسے مکہ کے بزرگ اپنے بچوں کو سناتے تھے۔ یہ واقعہ ہے 6 صدی عیسوی کا، تقریباً 570 عیسوی کے آس پاس کا۔ اس وقت عرب کی سرزمین پر کوئی ایک حکومت نہیں تھی، الگ الگ قبیلے تھے، الگ الگ سردار تھے، مگر ایک چیز سب کو جوڑتی تھی اور وہ تھا کعبہ۔ کعبہ اللہ کا گھر، مکہ کے بیچوں بیچ کھڑا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے، طواف کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ اس وقت لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر کعبہ کی تعظیم ان کے دلوں میں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ توحید کی روشنی ابھی نہیں آئی تھی، مگر کعبہ کا احترام وہ موجود تھا۔ اور اسی کعبہ کو مٹانے کا خواب دیکھا ایک ایسے شخص نے جس کا نام تھا ابراہا۔ ابراہا کون تھا یہ شخص؟ ابراہا ایک حبشی تھا، یعنی ایتھیوپیا کا رہنے والا۔ وہ یمن میں حکومت کرتا تھا، حبشہ کے نائب کی حیثیت سے۔ وہ ایک عیسائی تھا، پڑھا لکھا، طاقتور اور اپنی طاقت پر بے حد مغرور۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابراہا نے یمن کی راجدھانی سنا میں ایک ایسا گرجا گھر بنوایا جو اس زمانے کا عجوبہ تھا۔ اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، دیواروں پر سونے کی نقاشی، فرش پر سنگ مرمر کے پتھر، چھت اتنی اونچی کہ گردن اوپر اٹھانی پڑے۔ ابراہا نے یہ گرجا گھر بنایا تھا ایک مقصد کے ساتھ کہ پورا عرب اس کی طرف رخ کرے۔ جس طرح لوگ کعبہ جاتے ہیں اسی طرح یہاں آئیں۔ اس کا سپنا تھا کہ وہ عرب کے دلوں کا مرکز بن جائے، مگر ہوا کیا؟ عرب کے لوگوں نے اس گرجا گھر کو ایک نظر بھی نہیں دی۔ وہ اب بھی مکہ جاتے رہے، کعبہ کا طواف کرتے رہے، ابراہا کے شاندار گرجا گھر کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھا۔ یہ بات ابراہا کو اندر سے کھانے لگی۔ پہلے حسد تھا، پھر غصہ تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حسد اور غصے نے مل کر ایک خطرناک فیصلے کو جنم دیا۔ وہ فیصلہ جو تاریخ بدل دینے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک عرب شخص ابراہا کے گرجا گھر میں آیا۔ اس نے وہاں بے حرمتی کی، گندگی کر دی۔ یہ خبر جب ابراہا تک پہنچی تو اس کا خون کھول اٹھا، اور اس نے کہا، یہ عرب والے میرے گھر کی بے عزتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے اس گھر کو مٹا دوں گا جس کی وہ عزت کرتے ہیں۔ میں کعبہ کو زمین کے ساتھ برابر کر دوں گا۔ یہ صرف غصے میں کہی بات نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا۔ یہ اللہ کے گھر سے جنگ کا اعلان تھا۔ اور جب انسان اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اللہ اسے تھوڑی مہلت دیتا ہے، مگر پھر جب پکڑتا ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ابراہا نے حکم دیا، فوج تیار کرو۔ فوج کی تیاری، ہاتھیوں کا لشکر۔ ابراہا کی فوج کوئی عام فوج نہیں تھی، ہزاروں سپاہی، بے شمار ہتھیار، اور سب سے آگے 9 ہاتھی۔ اس زمانے میں ہاتھی جنگ کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ ہاتھی کو دیکھ کر دشمن کی فوج کے پیر اکھڑ جاتے تھے، گھوڑے بھاگ جاتے تھے، سپاہی بکھر جاتے تھے۔ اور ان 9 ہاتھیوں میں سب سے آگے تھا ایک بہت بڑا ہاتھی۔ اس کا نام تھا محمود۔ محمود اتنا طاقتور تھا، اتنا وشال تھا کہ اکیلا ہی دشمن کی صفیں توڑ دیتا تھا۔ ابراہا نے اسے سب سے آگے رکھا تاکہ جب لوگ اسے آتے دیکھیں تو دلوں میں دہشت بیٹھ جائے۔ فوج تیار ہوئی، ابراہا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں غرور تھا، اس کے ذہن میں جیت کا نشہ تھا،
वो सोच रहा था, कौन रोक सकता है मुझे? कौन है जो मेरे सामने टिक सके? रास्ते का सफर, रुकावटें और ताकत का मजाहिरा। लश्कर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई अरब कबीले आए। उन्होंने अब्राहा की फौज को रोकने की कोशिश की। वो बहादुर थे, मगर हाथियों के आगे उनकी बहादुरी काम नहीं आई। हाथियों की एक चिंगाड़ में उनके पैर उखड़ जाते थे। एक कबीले का सरदार, जिसका नाम धू नफर था, उसने अपने लोगों को लेकर अब्राहा से लड़ने की कोशिश की, मगर वो हार गया और कैद हो गया। फिर एक और कबीला आया, खसम का। उन्होंने भी टक्कर लेने की कोशिश की, मगर नतीजा वही हुआ। हर कोशिश नाकाम रही। अब्राहा की फौज आगे बढ़ती रही और हर जीत के साथ अब्राहा का गुरूर और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो मक्का के करीब पहुंच गया, एक जगह जिसे मुहस्सर की वादी कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब और 200 ऊंट। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जब अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने रास्ते में लोगों के जानवर और माल लूट लिया। उनमें से अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब, ये नाम याद रखिए, ये कोई आम शख्स नहीं था। ये मक्का के सरदार थे, कुरैश के रहनुमा, और ये सबसे अहम बात है, ये नबी करीम के दादा थे। जब उन्हें खबर मिली कि उनके ऊंट छीन लिए गए हैं तो वो खुद अब्राहा के कैंप में चले गए। अब्राहा ने जब उन्हें देखा तो वो हैरान रह गया। अब्दुल मुत्तलिब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें देखकर दिल में इज्जत पैदा होती थी। लंबे कद, वजीह चेहरा, बड़ी आंखें, एक ऐसा नूर जो चेहरे पर चमकता था। अब्राहा ने उन्हें इज्जत दी, पास बिठाया, तर्जुमान के जरिए पूछा, बताओ क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे 200 ऊंट वापस कर दो। अब्राहा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने सोचा था तुम एक बड़े आदमी हो। मैंने सोचा था तुम अपने मुकद्दस घर की बात करोगे, काबा को बचाने की गुहार लगाओगे, मगर तुम ऊंट मांग रहे हो। सिर्फ ऊंट? ये एक ताना था, एक चुनौती थी। मगर अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और उन्होंने वो जवाब दिया जो तारीख का सबसे यादगार जवाब है, वो जवाब जिसने तारीख में अपनी जगह बना ली। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैंने अपने ऊंट मांगे, और इस घर का एक मालिक है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। बस इतना। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई मिन्नत नहीं, सिर्फ यकीन, पूरा मुकम्मल अटल यकीन। ये जुमला सुनकर अब्राहा के दरबार में सन्नाटा छा गया। अब्राहा ने एक पल के लिए कुछ महसूस किया, शायद कुछ कांपा उसके दिल में, मगर गुरूर ने उस एहसास को दबा दिया। उसने ऊंट वापस कर दिए और मुस्कुराकर कहा, कल सुबह मैं काबा को खत्म कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब उठे, आहिस्ता चले, मक्का वापस आए। काबे का दरवाजा और एक दुआ। अब्दुल मुत्तलिब मक्का आए, सीधे काबे के पास गए। उन्होंने काबे का दरवाजा पकड़ा और रोने लगे और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा, उनकी सलीब और उनकी ताकत तेरी ताकत पर गालिब ना आने पाए। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक दिल की पुकार थी। ये एक बंदे का अपने रब पर पूरा भरोसा था। फिर उन्होंने लोगों को हुक्म दिया, मक्का छोड़ो, पहाड़ों में चले जाओ, ये मामला अल्लाह का है, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। लोग चले गए, मक्का खाली हो गई, काबा अकेला रह गया। रात का अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चल रही थी, काबा की दीवारें खड़ी थीं, खामोश मगर मजबूत, और अल्लाह की निगाह अपने घर पर थी। वो सुबह जो बदल गई दुनिया। रात गुजरी, सुबह हुई। अब्राहा ने अपने सिपाहियों को जगाया, खुद तैयार हुआ, घोड़े पर सवार हुआ। उसने हुक्म दिया, आगे बढ़ो। सिपाहियों ने महमूद को आगे धकेला, मगर महमूद नहीं हिला। फिर से धकेला, महमूद ने एक कदम भी नहीं उठाया। अब्राहा घबराया, चिल्लाया, इसे आगे बढ़ाओ। सिपाहियों ने छुड़ियां मारी, लोहे की सलाखें चुभोईं, महमूद को तकलीफ दी, मगर वो बस जमीन पर बैठ गया, आगे जाने से इनकार कर दिया। तफसीर इब्न कसीर में आता है कि जब उस हाथी का रुख यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो तेज़ी से दौड़ पड़ता, जब शाम की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ता, मगर जब काबे की तरफ मोड़ा जाता तो बैठ जाता, जैसे उसके पैरों में जंजीरें पड़ गई हों।
जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे रोक दिया हो। ये अल्लाह की पहली निशानी थी, मगर अब्राहा ने न समझा। उसने चिल्लाया, कोई और हाथी आगे करो। और फिर आसमान ने जवाब दिया। अबाबील वो परिंदे जो आसमान से उतरे। अचानक आसमान बदल गया। एक लम्हे पहले तक साफ आसमान था, मगर अब कुछ हो रहा था। लोगों ने ऊपर देखा। समुंदर की तरफ से परिंदों का एक बड़ा झुंड आ रहा था। फिर एक और झुंड, फिर और। जितनी नजर जाए परिंदे ही परिंदे। आसमान ढका हुआ था उनसे। ये थे अबाबील, छोटे परिंदे, नाजुक पंख, मगर अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमने उन पर अबाबील के झुंड भेजे जो उन पर पत्थर की कंकरियां फेंक रहे थे। सूरह फील आयत 3। हर परिंदे के पास 3 पत्थर थे, एक चोंच में, एक दाएं पंजे में, एक बाएं पंजे में। और ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे। रिवायात में आता है कि ये आग से पकी हुई मिट्टी के थे, जिन पर हर सिपाही का नाम लिखा था, और जिस पर जिसका पत्थर था वो उसी को लगा। पत्थरों की बारिश, फौज का खात्मा। पहला पत्थर गिरा एक सिपाही पर, वो चीखा और गिर गया। फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा, और फिर जैसे आसमान से आग बरसने लगी। हर तरफ पत्थर गिर रहे थे, हर तरफ सिपाही तड़प रहे थे। हाथी चिंघाड़ने लगे, घोड़े भागने लगे, सिपाही इधर उधर भागने लगे, मगर पत्थर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जो मक्का की तरफ भागा पत्थर साथ गए, जो यमन की तरफ भागा पत्थर साथ गए। जहां भी गए अबाबील ने पीछा किया। रिवायत में आता है कि पत्थर जिस जिस्म पर लगता था वो जिस्म गलने लगता था, टुकड़े टुकड़े होने लगता था। देखते ही देखते दुनिया की सबसे ताकतवर फौज खत्म हो गई। कुरान ने इसे क्या कहा? और उन्हें खाए हुए भूसे जैसा कर दिया। सूरह फील आयत 5। भूसा जो कुछ काम का नहीं, जो हवा में उड़ जाए, जिसकी कोई हैसियत नहीं। यही हाल हुआ उस फौज का जो घमंड के नशे में चूर आई थी। अब्राहा का अंजाम। अब्राहा खुद भी भागा, मगर पत्थर उस तक भी पहुंचे। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उसके जिस्म पर पत्थर लगे और उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। वो यमन की तरफ भागा, मगर रास्ते में ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल नहीं सका, और वो सना पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मर गया। वो शख्स जिसने कहा था मैं काबे को मिटा दूंगा, वो शख्स जिसने सोचा था मैं अजेय हूं, वो शख्स जिसके सामने पूरे अरब के कबीले कांपते थे, वो रास्ते में ही खत्म हो गया। उसकी लाश का भी कोई पता नहीं, उसकी फौज का नाम और निशान नहीं। बस रह गई एक कहानी, एक सबक, एक आईना। काबा अब भी खड़ा है, और काबा वहीं खड़ा रहा। जब लोग पहाड़ों से वापस आए तो काबे को बिल्कुल वैसे ही पाया जैसे छोड़ा था। एक ईंट भी नहीं हिली, एक पत्थर भी नहीं टूटा। काबा खड़ा था, शान से, इत्मीनान से, जैसे कह रहा हो मेरा रब मेरे साथ है। आमुल फील हाथियों का साल और एक अजीम पैदाइश। ये साल जिसमें ये वाक़या हुआ, अरब में इसे आमुल फील कहा जाता है, यानी हाथियों का साल। और इसी साल कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश का इंतजार सदियों से था। एक ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर दुनिया का नबी बना। एक ऐसा बच्चा जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना। वो थे हजरत मोहम्मद। फिर अब सोचिए, अल्लाह ने काबे की हिफाजत की। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये उसका घर है, बल्कि इसलिए भी कि इसी घर के शहर में उसका आखिरी नबी आने वाला था। इसी शहर से हिदायत की रोशनी पूरी दुनिया में पहुंचनी थी। अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है, हर वाक़या एक मकसद रखता है। सूरह फील अल्लाह का कलाम। इस वाक़े को अल्लाह ने खुद कुरान में याद फरमाया। सूरह फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं किया और उन पर अबाबील के झुंड भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे जैसा कर दिया। 5 छोटी आयतें, मगर इन 5 आयतों में एक पूरी दुनिया समाई हुई है, एक पूरा सबक, एक पूरी नसीहत। आज के लिए सबक हम क्या सीखें? पहला सबक, ताकत अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं। अब्राहा के पास सब कुछ था। हाथी थे, फौज थी, हथियार थे,
तजुर्बा था, जीत का इतिहास था। मगर अल्लाह ने एक इशारा किया और सब कुछ धूल में मिल गया। आज भी जब हम सोचते हैं कि हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारा पोजीशन यही सब कुछ है, तो ये वाकया याद करें। ताकत वो है जो अल्लाह दे। दूसरा सबक, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। अब्राहा के पास दिमाग था, वो एक काबिल हुक्मरान था, मगर गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। जब उसका हाथी आगे नहीं बढ़ा तो ये इशारा काफी था, मगर उसने ना समझा। गुरूर ऐसा ही करता है, ये आंखें होते हुए भी अंधा कर देता है, कान होते हुए भी बहरा कर देता है। तीसरा सबक, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद करता है। काबे की हिफाजत के लिए किसी इंसानी फौज की जरूरत नहीं पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, इस घर का एक मालिक है, वो खुद हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने यही किया। आज भी जब इस्लाम पर हमले होते हैं, जब दीन को कमजोर करने की कोशिश होती है, तो याद रखो अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करता है, वो अपने घर को खुद बचाता है। चौथा सबक, छोटी चीज भी अल्लाह के हुक्म से ताकतवर बन जाती है। छोटे परिंदे, छोटे पत्थर, मगर अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को खत्म कर दिया। जब अल्लाह का साथ हो तो कमजोर भी ताकतवर हो जाता है। पांचवां सबक, नीयत ही असल चीज है। अब्राहा की नीयत अल्लाह के घर को मिटाना था, अब्दुल मुत्तलिब की नीयत अल्लाह पर भरोसा करना था। एक की नीयत में तकब्बुर था, दूसरे की नीयत में तवक्कुल था। नतीजा सबने देखा। आज सोचें हम कहां खड़े हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनकर दिल में एक सवाल उठता है। अब्राहा ने ताकत पर भरोसा किया, अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह पर भरोसा किया। एक तबाह हो गया, एक तारीख बन गया। आज हम कहां खड़े हैं? जब मुश्किल आती है तो हम किस पर भरोसा करते हैं? अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने रिश्तों पर, या अल्लाह पर? जब अल्लाह का घर खतरे में था तो अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत की। जब हम अल्लाह के रास्ते पर होते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत करता है, मगर शर्त यह है कि हम उसके घर के हों, उसके दीन के हों, उसके अहकाम पर चलने वाले हों। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, इस घर का एक मालिक है। आज हम कहें, हमारी जिंदगी का भी एक मालिक है, और जब वो साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आउटरो। दोस्तों, ये था असहाबे फील का वाकया। एक ऐसा वाकया जो 1400 साल से भी पुराना है, मगर इसके सबक आज भी उतने ही ताज़ा हैं, उतने ही ज़रूरी हैं। अल्लाह हम सबको गुरूर से बचाए। अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल करे जो उस पर भरोसा करते हैं। आमीन। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली बार आप किस नबी की कहानी सुनना चाहते हैं, किस कौम का वाकया जानना चाहते हैं। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। जज़ाकल्लाह खैर।